اور اپنی طرف سے نہیں، اعلیٰ حضرت نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے خود ہی کہہ دیا ہے، لیکن حضرات پھر موقع ملے گا کچھ میں اس سے ہٹ کر آئیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، بیان کرنے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا بیان کیا جس کا ماحصل آپ سمجھتے ہوئے چلو، اگر آج مولانا نوشاد کے والد، ان کی والدہ، ان کے گھر والے، ان کے گاؤں والے، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست اور احباب کو اگر خوشی ہے تو ہم لوگوں کو بھی خوشی ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں فرمایا ہے۔ اور میں ان سے بھی کہنا یہی چاہتا ہوں، اپنے علم کی قدر کیجئے گا، شریعت مصطفیٰ کا خیال کیجئے گا، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے دوسروں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کی کوشش کیجئے گا، پیغمبر اسلام کے فرمان کو عام کرنے کی کوشش کریے گا، اور یہ ڈھکے کی چوٹ پہ کہیے گا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال کو دیں گے، مگر یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ لیکن حضرات کیا بتاؤں، علم ایک ایسی چیز ہے، اب پوچھ لیا جائے علم کس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ علماء ہیں، منطق میں بھی پڑھے ہوں گے، فلسفہ بھی پڑھے ہوں گے، حدیث بھی پڑھے ہوں گے، علم کی تعلیم جو ہے بزرگوں کے اقوال بھی پڑھے ہوں گے، امام احمد رضا کے والد مولانا نقی علی خان کے یعنی فرمان کو بھی پڑھے ہوں گے کہ انہوں نے علم کی تعریف کیا کیا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی پڑھے ہوں گے کہ علم کی تعریف کیا کیا ہے۔ تو آگے ایک جملہ سنتے ہوئے چلیے گا، بیان یہ کیا گیا ہے کہ علم و نور یعنی علم ایک روشنی ہے، یعنی جب علم کی دولت سینے کے اندر آ جاتی ہے، دل کے اندر بے وقت ہو جاتی ہے، تو امام احمد رضا کے والد فرماتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، علم کہتے ہیں اس کو کہ جس سے یعنی مخفی چیز ظاہر ہو جائے اور جس سے پوشیدہ چیز منکشف ہو جائے، اسی کا نام شریعت علم قرار دے رہی ہے۔ یہ انہوں نے کہا فضیلت بہت ہے۔ ایک جملہ کہہ دو، آج مولویوں کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ چندہ کرنے والے خالی ہیں، ہے نا؟ لگے کسی کو برا، اس کو میں پرواہ نہیں، اس لیے کہ شاعر نے کہہ دیا ہے اور اعلیٰ حضرت ہی نے کہہ دیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے لیکن سنیے یہ بھی صاف کر دو، آج علم ہے، اپنے آپ کو کوئی عالم کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مفتی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہہ رہا ہے، لیکن حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم علم کی قدر کرو گے تو علم کی بدولت تمہارا مرتبہ بڑھے گا، اپنے پہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہاں یہ سوچ آج علم ہمارے اندر ہے جو شریعت مصطفیٰ پیغام دے رہی ہے، کیا پیغام علم کے بدولت ہم کو حاصل ہوا ہے کہ تم بڑوں کی تعظیم کیا کرو، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو۔ شریعت نے بتا دیا ہے کہ ایک ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے، ایک باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے، ایک بھائی کا درجہ کیا ہوتا ہے، ایک بڑے کا رحم و احترام کیسا ہوتا ہے، اور شریعت وہی ان کے ذریعے پیغام دے رہی ہے۔ اگر انسان ہو عاجزی ضروری ہے، تکبر غرور نہیں ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کبر نہیں ہونی چاہیے، چغل خوری نہیں ہونی چاہیے، تمام برائیاں اپنے اندر سے یعنی
मिटाने की कोशिश की जाए। इसलिए इल्म इसीलिए हासिल की जाती है ताकि हलाल का फर्क हो जाए, हराम का फर्क हो जाए, हक का फर्क हो जाए, बातिल का फर्क हो जाए। जब ये इम्तियाज लेकर के इल्म को हासिल करता है तो आप शरीयत का जुमला सुन लीजिएगा। मैंने तो ये पढ़ा है कि जो इल्म हासिल करता है परवरदिगार की रहमत बचलती है और परवरदिगार ऐसे इल्म वाले के लिए बयान करता है कि उसके गुनाहों की अल्लाह इल्म के सच्चे में मग़फ़िरत अता फरमा। सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत होता है। आप कहोगे कि ये बहुत है ना, लेकिन हजरात हदीस का टुकड़ा सुन लीजिएगा। एक हाफिज़े कुरान कितने की शफाअत करेगा और एक आलिमे दीन, अगर हकीकत आलिमे दीन है तो। लेकिन और एक इससे पहले बता दूं, आज हम देखते हैं है ना कि ये मौलाना सुल्तान आली जनाब है ना, इनके दो वालिद है ना, वो ये नाम है, इनके बेटे हैं। हम देखते हमारे गांव का एक लड़का है, लेकिन आप कुर्बान जाइएगा, शरीयत हुक्म देती है कम से कम अपने बच्चे को इतना इल्म दीन हासिल करवा दो कि जो यानी तमाम जो जरूरी चीजें हैं उसका जानने वाला हो जाए। कम से कम नमाज पढ़ने का तरीका, वज़ू करने का तरीका, अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करने का जामिन बन जाए। लेकिन आज लोग इससे कोसों दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, एक आपका बच्चा है, अब इसी पे आप यानी मचल जाइएगा। एक आपके गांव का बच्चा है, वो यानी बच्चा जब इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए चलता है तो उसके लिए बयान ये किया गया, सुनो, यानी जब वो अपना कदम को बढ़ाता है तो वो अल्लाह के रास्ते में सफर करता है। सुनिए, अल्लाह के रास्ते में सफर करता है। और हदीस ये है कि वो अल्लाह उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पे चलाता है। और ये बड़ी खुशकिस्मती क्या कहा जाए, सुन लो, एक तालिब इल्म जो इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए चलता है तो पता को देख रहे हैं कि कदम बढ़ा रहा है तो कहीं यानी उसका कदम मिट्टी पे पड़ रहा है, कहीं कंकड़ पे पड़ रहा है, कहीं गंदगी जगह पे पड़ रहा है, कभी कांटे पे पड़ रहा है। लेकिन आओ, जो इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए जा रहा है तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उलमा को गवाह बना करके शरीयत के दायरे में कर रहा हूँ कि सुनो, मेरे नबी ने फरमा दिया है कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने कदम को बढ़ाता है तो जिब्रील अमीन उसके कदम के नीचे अपने पर को बिछा दिया। किसी और इल्म हासिल करने वाले के कदम के नीचे हो तो बताओ। और इनके वालिद साहब, फिर उसके बाद एक फजीलत सिर्फ बयान करूंगा। इनके वालिद साहब है और आप लोग के सामने बच्चे है ना, आपने शुरू से लेकर अब तक देखा। लेकिन हजरात ये बहुत ही तफसील नहीं, एक जुमला देना चाहता हूं। चलिए, हमने पढ़ाया और यहाँ पे बहुत सारे असातिज़ा है, इन्होंने तालीम दिया है, लेकिन बाप का मर्तबा कितना बुलंद होता है। शरीयत बड़ों की ताज़ीम करने का हुक्म भी दे रही है। अगर ये आपके मस्जिद में पहुंच गए मुसल्ले इमामत का तो क्या ये अपने बाप को देख करके पीछे हटेंगे? अब इतना वक्त नहीं, इसलिए मैं जो कहना चाहता वो सुन नहीं। क्यों इनको हटना चाहिए कि बाप का दर्जा बहुत बुलंद है। बाप पीछे खड़ा है लेकिन बेटा आगे बढ़ रहा है, बुजुर्ग पीछे खड़ा है, बेटा आगे बढ़ रहा है, भाई पीछे खड़ा, बेटा आगे बढ़, भाई आगे बढ़ रहा है। तो आखिर मौलाना नौशाद का कोई आलिम
दीन है, इनके मकाम मर्तबे को मुसल्ले इमामत पे कायम रहने के लिए अगर किसने बुलंद किया है तो ना हमने बुलंद किया है, ना मौलाना इंतजार साहब ने बुलंद किया है। अगर इनके मकाम को कोई बुलंद किया है तो इनके दीन मुस्तफा ने बुलंद फरमा दिया। इनकी बुनियाद पर इनका मकाम मर्तबा बुलंद हो रहा है। हजरात आओ, लेकिन हाल अफसोस ऐसे भी वाकयात है, वाकयात बहुत आ रहे हैं जहन में। और एक मिसाल उलमा से तवज्जो देख, एक नबी की असमत भी हो जाए। आज सुनो, मेरे सरकार हुजूर अहमद मुस्तफा, ये समझ लो एक इस्लामी दूल्हा के पास आकर अब्दुल हमीद साहब बन करके आपके सामने बैठे कि नहीं बैठे, है ना? दीन की अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है। अब वो तालिबे इल्मी का दौर गया है ना, इसलिए मैं गुजारिश इनसे यही करूंगा कि मदरसे के वकार को मजरूह मत करना, असातिज़ा के इज्जत को पामाल मत करना, अपने वालिदैन की दुआओं को फरामोश मत करना, बल्कि ऐलान करते हुए नजर आना कि हमने इल्म हासिल किया है तो दीने मुस्तफा की खिदमत करने के लिए हासिल किया है ना। और हम भी कह देते हैं, एक मैं अपना नजरिया बता रहा हूं, है ना भाई, अगर गलत होगी सबका नजरिया अलग अलग है। हम आ गए आपके गांव पे, बहुत सारे लोग आए, आते हैं चले जाते गए, दावत देने। मैंने कहा कि पहले 10,000 ला करके मुझको दो, तब चलूंगा। उसके बाद आकर के कहते हैं दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये कौन सी खिदमत है? क्या मैं आपसे कह दूं अपना घर लिख दो, लिख दोगे? ये अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है कि उसने कम से कम इस लायक तो मुझको बना दिया कि हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने वाले हो गए। मैंने तो किताब में ये पढ़ा कि सुनो, जो इस नियत में कदम बढ़ाता है कि मैं दीने मुस्तफा की खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ, तो अल्लाह उसके कदम बढ़ाने की वजह से उसके गुनाह की मग़फ़िरत भी करता है और उसके दर्जात को अल्लाह बुलंद भी फरमा देता। सुभान अल्लाह। लेकिन हाय अफसोस, मैं क्या कह रहा था, फजीलत सुन लो, है ना। सरकार की मैं ये दूल्हा बना, और आपने सुना होगा कि मेरे नबी भी मेराज की रात में दूल्हा बना। बहुत गौर की बात है ना, दुआ के लिए कह रहा हूं, वरना आप लोग को आलिम भी जानते हैं। दुआ फरमाइएगा मेरे सरकार दूल्हा बने। तो जानते हो मेरी सरकार भी दूल्हा बनने से पहले नहाए कि नहीं नहाए? किससे नहाए? तो ये उलमा बताएंगे, जो मेरे इल्म में मैं भी बता रहा हूं कि जन्नत का दरोगा 2 याकूत की सुराहियों को भर करके नबी की बारगाह में लेकर के हाजिर, और उस सुराही में क्या भरा था? आबे कौसर। आबे कौसर से नबी ने गुस्ल फरमाया। समझ में बात आ रही है? गुस्ल फरमाया। देखो, अगर वलवला अंग्रेज तकरीर जा सुनोगे तो वो भी करना जानता हूं, लेकिन समझ लो एक माजरा पे मैं फंसाने वाली कभी न किया हूं न करूंगा, चाहे कोई मुझको बुलाए ना बुलाए, इसलिए कि मिंबरे रसूल है, ये हंसी और ठाट्टे की बैठी नहीं, हमको भी अल्लाह के आ जाना। आज सुन लो किससे नबी ने गुस्ल किया, नहाए ना, जिस्म पर पानी डाला और जिस्म से हो करके पानी तलवे से हो करके नीचे गिर गया। हम लोग भी नहाते कि नहीं नहाते? रोजाना ना सही, लेकिन जुमा तो जरूरी ना है, और अगर जुमा ना सही तो ईद बकरीद तो ही है। नहाते हैं ना,
जब नहा रहे हो, गुस्ल कर रहे हो, तो वो पानी जो आपके जिस्म से हो करके गिरा किसी काम आया, बेकार हो जाता है, कोनो काम लगता है। अच्छा, आप कहते कि सूफी मियां साहब आप नहाते हैं तो क्या वो पानी तलबे से हो करके गिरा किसी काम आ गया? मौलाना नौशाद कभी फारिग हुए ये नहाए तो इनके तलबे से जो पानी गिरेगा किसी काम आएगा? पानी बेकार, लेकिन बाहरे यमुना के लाल अहमद मुख्तार जब तूने गुस्ल किया है तो वो पानी को तलबे से होकर के गिरा है। जब तू दूल्हा बन रहा था और दूल्हा बनने से पहले नहाया है तो वो पानी किस काम आया है? क्या वो पानी बेकार हो गया? पानी वो बेकार नहीं हुआ तो उसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, किसी अपने आलिम और हाफिज से नहीं पूछ रहा हूँ, किसी अपने शायर से यहाँ नहीं पूछ रहा हूँ। आओ इस सवाल को ले चलते हैं सीधे बरेली शरीफ इमाम अहमद रजा की बारगाह में। क्या इमाम अहमद रजा एक सुन्नियत के इमाम, एक आशिक़ मुस्तफा, आप भी बता दे कि जब नबी गुस्ल किए तो वो पानी किस काम आया? तो बरेली का इमाम पुकार उठा है कि 50 तलबों का उनके